All my dear students, all of you are welcome in this morning session of English Literature. I am Dr. Naresh Agrawal, going to represent a very beautiful poem. The world is too much with us. The very title of the poem is very apt and appropriate in this modern context and timelessness forever. The poem is one of the famous sonnets of William Wordsworth. He composed this poem in May 1806. It is an expression of his love and admiration for objects of nature, such as the sun, the moon, the sky, the sea, and the winds, the waters, the mountains, the flowers, the plants, the trees, the forest, the rainbow. Moreover, the language is quite simple. He believes that the poetry ought to be written in the simplest language of the common human being. He is one of the most lover of nature, and this poem is one of the most characteristic products of William Wordsworth. The poem exhibits the love of the poet for paganism. Let me discuss in detail. Dear listeners and learners, William Wordsworth feels grieved to note the people becoming more and more materialistic. They have to love for the beauty of nature. They devote their whole energy in accumulating wealth. They delight themselves in the physical pleasures. The people of the contemporary society were busy in wasting their time, money, and energy in frivolous enjoyments instead of loving nature. They had no taste for the appreciation of the variety of the beautiful aspects of nature. They run after money and physical pleasures. In the eyes of the poet, their lives have no meaning, and he condemns their mechanical pursuit of wealth and money. Their sense to love and admiration for the valuable objects of nature is completely exhausted. Moreover, the poet is grieved at the growing tendency towards materialism that he desires to go back to the age of pagans. They were simple and innocent people, completely untouched by the sophisticated characteristics of the modern people. The poet will enjoy himself in the beautiful atmosphere of nature in the age of pagans. The poet longs to have the visions of gods of nature such as Triton and Proteus. He is even prepared to accept paganism for Christianity for the sake of his love for nature. विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने खुद अपने एक्सकर्शन एक एपिक में महाकाव्य में लिखा है कि मैं क्रिश्चियन थ्योरेटिक फैंसीज से मेरा मन भर गया। अब जब भी मेरा नया जन्म हो, नया इनकारनेशन हो, तो मैं भारतीय संस्कृति में हिंदू गंगा की गोद में मेरा जन्म हो, हिमालय की छाया में मेरा जन्म हो, और मैं हिंदू परिवार में, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति में मैं जन्म लूँ। इतना अद्भुत प्यार उनका भारतीय संस्कृति, ओरिएंटल फिलॉसफी के लिए देखने को मिला। लोगों की ग्रोइंग टेंडेंसी फॉर मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनको बहुत परेशान करती थी। He was deeply pained to see that his contemporaries were wasting all their powers and time in earning money. They had great power of spiritual elevation and development of the soul, but they waste all that power in amassing wealth and spending it in wasteful pleasures. In earning money and spending it in and out of the season, they waste all their power. They do not find time to appreciate the beauty of nature. They did not claim any kinship with nature. They had completely bartered their hearts and souls with mercenary bargains. They had been without the inner feelings for nature, higher values of life. It was certainly a dull bargain in which his contemporaries were
Engaged, the sight of the grand sea lying open in the glare of the moonlit night does not attract us. The winds that would be making horrible sounds, howling during the day, are calm and quiet at night. But we have no time to appreciate the beauty of nature. We have no sense of appreciation for such a great beauty of nature. We are always busy with the materialistic pursuit of life. The poet recorded the growing tendency toward materialistic approach of modern people. They are completely devoid of the love of nature. They run after wealth and spend their energies in cheap physical enjoyment. The poet is so much disgusted with the ugly life of his age that he desires to run away to the age of pagans who were simple and innocent people. The pagans believed in various gods and goddesses found in nature. In their company, he would stay beside meadows, चरागाह खेतों में जहाँ मवेशी चरते हैं, meadows, and enjoy himself among the variety of beautiful objects of nature. His loneliness will vanish, disappear. अकेलापन भी प्रकृति की गोद में दूर हो जाता है. In the company of beautiful scenes of nature, he would get an opportunity to hear the sound of the conch shell, conch shank blown by Triton. He would like to see the sea god, Jal Devta, Varun Devta, Proteus. He is ready to accept paganism for Christianity for the sake of his love of nature. Pagan is nature worshipper, a believer in polytheistic religion. However, according to Greek mythology, Proteus is the son of oceans and Tethys, the god and goddess of sea. Triton, an attendant on the sea god Neptune, used to calm the waves of the sea by blowing upon his conch. शंख में ध्वनि करके, शंख ध्वनि से, नाद ध्वनि से वो समुद्र की लहरों को शांत कर देता था ट्रीटन. द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग ह्यूमन फॉर्म, ऊपर का शरीर कैसा था, मनुष्य जैसा, एंड द लोअर दैट ऑफ फिश, और मत्स्य अवतार जैसा कहा जाता है. आधा हाफ फिश हाफ मैन, आधा मछली आधा पुरुष, लाइक ए मरमेड, जल परी की तरह से. ट्रीटन इन ग्रीक माइथोलॉजी इज द सन ऑफ Poseidon and Amphitryon. However, a very beautiful, which is very apt and appropriate in modern context, all world scientists, they witness global warming. Why it is going to happen so? Simply because growing materialistic tendency of man, भौतिकता की तरफ बढ़ता हुआ आकर्षण, पैसा पैसा हाई पैसा, एंड फॉर द सेक ऑफ मनी माउंटेन्स आर क्रम्बल्ड टू पीसेज, पहाड़ों को काट दिया जाता है. फॉरेस्ट, ट्रीज, फ्लोरा किंगडम आर डिस्ट्रॉयड, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है. कमर्शियली उस जगह को यूज़ करते हैं. मनी माइंडेड एंड कमर्शलाइज्ड पर्सन हर चीज़ को कमर्शियल तरीके से देखने लगते हैं. जंगल को काट करके वहाँ पर होटल इंडस्ट्री, अन्य व्यापारिक संस्थाएं लगा देते हैं. पैसा पैसा पैसा, बट दे फॉरगेट मनुष्य 5 तत्वों से बना है. क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच तत्व यह है अधम शरीरा. तुलसीदास ने भी ये बात लिखी है. मनुष्य कितना ही पैसा, सोना चांदी कितना ही इकट्ठा कर ले, क्या भूख मिटाने के लिए मनुष्य सोने के बिस्कुट खाएगा, कागज़ के नोट जो टुकड़ों को खाएगा? क्या खाना पड़ेगा? भोजन. भोजन कहाँ से मिलता है डियर लर्नर्स एंड लिसनर्स? प्रकृति की गोद से हमें भोजन मिलता है. गेहूँ, चना, विभिन्न प्रकार की दालें, फल फ्रूट, दूध,
दही, मक्खन, शहद, ये सब कहाँ से मिलते हैं? इन द लैप ऑफ नेचर। तन ढकने के लिए, गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, शरीर की रक्षा करने के लिए वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्र कहाँ से उत्पन्न? कॉटन, कपास, सब की सब कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रकृति की गोद से। तो जब हर चीज़ प्रकृति की गोद से उत्पन्न होती है तो मनुष्य, तो इस प्रकृति का वैरी क्यों है? तो इसका विरोधी क्यों है? सर्दियों में शरीर की शिथिलता को, शर्दता को दूर करने के लिए, ठंडकपन को दूर करने के लिए आँच का, अग्नि का सहारा लेता है, जो कि कहाँ से आती है? प्रकृति से ही आती है। तो सब कुछ, हर चीज़ प्रकृति से उत्पन्न होती है। जड़ी बूटियाँ सब, चोट लग जाए तो मरहम, ये सब कहाँ से आते हैं? जड़ी बूटियों से, प्रकृति से आती हैं। तो फिर है मनुष्य, तो प्रकृति का इतना विरोधी, इतना बैरी क्यों है? हमें सोचना पड़ेगा। कोरोना जैसी महामारी, विषम परिस्थितियों में भी बड़े बड़े देश, दुनिया के मालिक, अमेरिका जैसे बड़े बड़े लोग, सच्चे मायने में कहलाने, आधुनिक शब्दों में आधुनिक संसार के सच्चे मालिक, कोरोना के सामने धराशायी हो गए। वो सब प्रकार की कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट सब बंद पड़ी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन मनुष्य 2 टाइम भोजन खाने के लिए ऐसी महामारी में भी भोजन को तलाशता है, फल फ्रूट को तलाशता है। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की गोद में। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति ने कभी भी उस मनुष्य को ठुकराया नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ा जिस मनुष्य ने प्रकृति को प्यार किया है। तो आओ मिलकर के हम सब प्रकृति की केयर करें। हमारे वेद पुराणों में प्रकृति, पीपल देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, इनको देवताओं की उपाधि क्यों, सेमी गॉड की उपाधि क्यों दी थी? सिर्फ उसके पीछे यही वैज्ञानिक कारण था कि जब हम जिसको देवता मानते हैं, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं। और जब हम वायु को ऑनर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वायु को दूषित नहीं करेंगे। जल को इतना रिस्पेक्ट देंगे वरुण देवता के रूप में, तो हम जल को पॉल्यूट नहीं करेंगे। नहरों का जल, समुद्रों का जल, गंगा जी, जमुना जी, अन्य प्रकार के समुद्र, बावड़ी, जल के स्रोत, उनको हम नष्ट नहीं करेंगे, उनको दूषित नहीं करेंगे, उनको पोल्यूट नहीं करेंगे। वन देवता, पीपल देवता, तुलसी महारानी, ये सब वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं। पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। तुलसी की खास बात और है कि जब आसमान में बिजली चमकती है ना, तो सारी बिजली को अर्थिंग के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है ना, वहाँ बिजली आसमान में चमकती हुई नुकसान नहीं दे सकती। इसीलिए पुराने ज़माने में खुले आंगने में तुलसी का पौधा उगाया जाता था। आज मनुष्य उस प्रकृति को, जिस प्रकृति की ही वो देन है, उसको ही भुला बैठा है, उसकी ही प्रशंसा नहीं कर रहा। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी हो रहे हैं कि मनुष्य कितनी गलत राह पर है कि वो प्रकृति को ही नष्ट करने लग रहा है, और विषम परिस्थितियों में ये प्रकृति ही उसका सहयोग देगी। और ये सभी लर्नर्स, डियर मित्रों, आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स कि कोरोना जैसे अपने पूरी दुनिया बंद थी 3-4 महीने के लिए अंदर घरों में, तो केवल 2 टाइम का भोजन खा करके ही गुजारा करते थे। केवल प्रकृति ने ही सहयोग दिया, तो हम क्यों ना उस प्रकृति के सौंदर्य को निहारें। अब समझ में आ गया कि वेदों के अंदर प्रकृति की क्यों पूजा उपासना की बात की है, कि जब मनुष्य इनकी बहुत पूजा अर्चना उपासना करता है, उनको देवताओं जैसा मान सम्मान देता है, तो उनको नष्ट नहीं करता, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उनको पॉल्यूट नहीं करता, बल्कि इसको संवर्धन की बात करता है। हमारे यहाँ तो लिखा है ओम द्यौ शांति ही वनस्पतया, वनस्पति भी शांत हों और इतनी हमारे लिए पीसफुल प्रोग्रेस हमें प्रदान करें।
और ये हमारे जीवन को उपयोगी और सार्थक बनाए। यहाँ पर कवि महोदय ने अपने महाकाव्य में, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिरिकल बैलेड्स में, एक्सकर्शन में, प्रिल्यूड में अनेक जगह पर ये बात कही है कि मनुष्य प्रकृति का यूटिलाइज करो, उपयोग करो, ना कि दोहन, एक्सप्लॉइट नहीं करना। जब जब मनुष्य ने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया है, प्रकृति मनुष्य को एक्सप्लॉइट करने लग गई है। ग्रीन, ये अब प्रॉब्लम चल रही है ना ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं, इसी का ही परिणाम है। तो यहाँ आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनेंगे। एक नंबर पॉइंट की अटैक ऑन मटेरियलिज्म, द पोइट मेक्स एन अटैक ऑन मटेरियलिज्म। एक भौतिकता का बढ़ता हुआ जो नशा है उसके ऊपर वो कवि अटैक करता है कि ये किसी भी काम का नहीं है। लव ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअलिज्म, कवि महोदय ने लव के अंदर, फूलों के अंदर, वायु के झोंके के अंदर, पेड़ पौधों, पत्तियों के अंदर वो अध्यात्म को महसूस कर लिया था, वो ईश्वर के रूहानी तत्व को महसूस कर लिया था, जो सामान्य आंखें महसूस नहीं करती। लगता था प्रकृति उससे बोल रही है। यही निराकार ईश्वर का रूप है, जो कि साकार रूप में कण कण में समाया हुआ है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, बिल्कुल उपयुक्त टाइटल कहा है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये संसार हमारे साथ में इतना चिपक गया कि हम संसारिक हो गए। अब प्रिय विद्यार्थी मेरे साथ पोइम पढ़ लो। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये संसार इतना ज़्यादा हमारे साथ चिपक गया। लेट एंड सून, जल्दी और शीघ्रता से। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर, हम सारी जल्दी, लेट, शीघ्रतापूर्वक जैसे भी अपनी सारी पावर, एनर्जी पहले तो पैसा इकट्ठा करने में लगाते हैं, और जब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं फिर पैसे को हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू स्पेंड मनी, फिर इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, लिटिल के आगे कोई आर्टिकल नहीं होता, इसका मतलब ना के बरोबर, तो ज़ीरो। लिटिल वी सी इन नेचर, प्रकृति के अंदर हम बिल्कुल भी देखते नहीं हैं। दैट इज़ आवर्स, ये प्रकृति हमारी स्वयं की है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने हमारे हृदय को बहुत दूर कर लिया है। ए सॉर्डिड बून, क्या कहें, इतनी बुरी हालात हमने खुद ने प्रस्तुत कर लिए हैं। एक अभिशप्त सी, अभिशापित सी स्थिति मनुष्य ने खुद की बना ली है। दिस सी दैट बेयर्स हिज बोसम टू द मून, समुद्र की बात बता रहा है, देवता, समुद्र देवता की, जिसमें चांदनी इस प्रकार से उसके अपने वक्ष स्थल पे उसको सहन करती है। चांद का रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर, हाउलिंग बहुत ही कर्कश आवाज़, बहुत विशेष रूप से खतरनाक आवाज़ें, अर्थात ये संसार की खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं जो कवि को सुनाई दे रही थी। यदि लोग प्रकृति का ध्यान नहीं करेंगे, प्रकृति की उपासना नहीं करेंगे, यदि प्रकृति का विनाश करते रहेंगे, यदि प्रकृति को काटते रहेंगे, जीर्ण शीर्ण करते रहेंगे, नष्ट करते रहेंगे, तो कवि के कानों में वो हाउलिंग आवाज़ आई है कि मनुष्य का विनाश निश्चित होगा। फिर बहुत ही हाईली टचिंग वर्ड्स, हार्ट टचिंग शब्दों पे कह रहा है, इट मूव्स अस नॉट गॉड, ग्रेट गॉड, ओह ईश्वर, इतनी दुर्दशा भी हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर रही है। आईड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटवॉर, काश मैं वो पेगन बन जाऊं, वो उस धर्म का अनुयायी बन जाऊं जिस धर्म के अंदर कण कण के अंदर ईश्वर को देखा जाता है। वो लोग, वो समाज हो जहाँ पेड़ पौधे, पहाड़ पठार, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, सब के अंदर ईश्वर तत्व को महसूस किया जाए। जब मनुष्य प्रकृति के सभी एस्पेक्ट्स में ईश्वर तत्व को देखेगा, कण कण में ईश्वर का साकार या निराकार जिस भी रूप के अंदर आध्यात्मिकता का पुट रखेगा, आध्यात्मिकता को एहसास करेगा, तो ऐसा मनुष्य प्रकृति को नष्ट नहीं करेगा। और जब मनुष्य प्रकृति को नष्ट नहीं करेगा तो उसके खाने पीने के अंबार इस संसार में उसको उपलब्ध होते रहेंगे और हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी महामारी, विषम परिस्थिति में कुछ भी हो, भोजन हमें जो मिलता है
रोशनी, सूर्य की रोशनी, लाइट, चंद्रमा की शीतलता जो कि वन औषधि को पोषित करता है, वायु, स्वच्छ वायु और शीतल वायु की अग्नि और अग्नि की तीव्रता, और ये सब चीज़ें हमें प्रकृति की गोद में ही उत्पन्न मिलती हैं। अब ये मनुष्य के हाथ में है कि यदि हम इनको नष्ट कर देंगे तो हमारा खुद का जीवन कैसा होगा। अब आप समझ गए। इस कारण से हमारे यहाँ वेदों के अंदर कण कण के अंदर ईश्वर की छवि देखी जाती थी, चाहे वो निराकार ईश्वर हो, चाहे वो साकार हो। जब आप हर जगह वायु के अंदर कण कण में ईश्वर को देखेंगे, प्रकृति के अंदर कण कण में ईश्वर को देखेंगे, तो आप उसको कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे ये लॉजिक था, ये आर्गूमेंट्स थे, ये साइंटिफिक रीज़न था, ये वैज्ञानिक कारण था। डियर स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हमारे गुरुदेव के रूप में महसूस होते हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ इतना संबंध स्थापित कर लिया था कि लगता था ये नीला नीला आसमान, द ब्लूअर एंड ब्लूअर स्काई टॉकिंग टू हिम, द गेल ऑफ विंड्स कमिंग बिहाइंड हिम, फ्लावर्स are attracting him as if they are talking like a nurse, a mother or educationist. यूं कहें कि वर्ड्सवर्थ साहब का लालन पालन पोषण प्रकृति की गोद में ही हुआ था। He was brought up and reared up in the lap of nature. उनके घर के पास में रिवर डरवेंट बहती थी। जब वो 4-5 साल का बच्चा था विलियम वर्ड्सवर्थ, तभी से प्रकृति की गोद में प्रकृति को निहारने लगा। और जब वो बड़ा हुआ तो वही प्रकृति कभी उनको एक टीचर के रूप में, कभी नर्स के रूप में जो दिखती थी, वो टीचर के रूप में दिखने लगी, एक शिक्षक के रूप में। वो जब वर्ड्सवर्थ गलती करते थे तो वही उनको प्रकृति कभी ठीक वैसे डराती थी जैसे एक माँ अपने उस छोटे से बालक को डराती है जो बालक उसकी गोद में बैठा गलत काम करता है। मान लीजिए कि छोटा सा बालक एक सांप को पकड़ रहा है तो माँ फटाफट से झपट्टा मार के उसको दूर कर लेगी। तो इसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास प्रकृति की गोद में ही हुआ। उनकी आईब्रो इतनी इंटेलिजेंट विजनरी पावर थी, उनके विज़न इतना इंटेलिजेंट था, उनको पता था कि आने वाले युग में वैज्ञानिक युग हो जाएगा और जितना वैज्ञानिक युग ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लोग प्रकृति का ध्यान नहीं देंगे, भूल जाएंगे और प्रकृति को भूल जाएंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे तो मनुष्य का श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन to live on this planet without a drop of water, without breathe in oxygen? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे प्लैनेट धरती पर क्या बिना ऑक्सीजन के, बिना श्वास लिए आपका जीवन संभव है? बिना जल के जीवन संभव है? बिना भोजन के संभव है? ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्रकृति की गोद से आती हैं। इसलिए हे मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, आधुनिकता को छोड़ करके अब तुम प्रकृति के उपासक बनो, एप्रिशिएटर, प्रशंसक बनो, प्रेजर बनो, ताकि तुम प्रकृति को नष्ट ना करो। और जब तुम प्रकृति को नष्ट नहीं करोगे तो प्रकृति मनुष्य के जीवन को भी नष्ट नहीं करेगी। यही इंटरनेशनल मैसेज इस कविता के माध्यम से दिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चाहो तो मैं इसको इंग्लिश में बहुत ही कम शब्दों में एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बहुत ही जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। सुन लीजिए मेरे साथ में। विलियम वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर. He realized that common human beings are becoming more and more materialistic, भौतिकवादी हो रहे हैं। They have, इसलिए so they have to love for the beauty of nature, for the sake of man, for the protection of our own self. If nature is protected, if environment is protected, man is protected. If environment is destroyed, man is destroyed ऑटोमेटिकली। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को एनवायरमेंटलिस्ट की उपाधि भी दी जाती है। लोग, पीपल, दे डिवोट देयर होल एनर्जी इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, धन को इकट्ठा करने में, पहले इन अर्निंग
और फिर इन स्पेंडिंग, अक्सर ऐसा देखने में आता है, इसको कहा जाता है फॉली ऑफ द वाइज, बहुत बड़े समझदारों की मूर्खता, पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता। पहले तो प्रकृति का ध्यान नहीं देते, और जब अंदर श्वास जाना बंद हो जाता है, मशीनरी, शरीर की मशीनरी काम करना बंद करती है, तो वॉकिंग शुरू करते हैं, गार्डन में जाना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक शरीर की मशीनरी साथ छोड़ चुकी होती है, तो हे मनुष्य, अब तुम अपना पूर्ण ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखोगे? तुम प्रकृति का ध्यान रखोगे, प्रकृति तुम्हारा ध्यान रखेगी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसकी राइमिंग स्कीम और इसकी हर चीज़ इतने सुंदर तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने, उससे पहले मैं बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने रोमांटिक लिटरेचर के प्रणेता के रूप में, प्रोपाउंडर ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन इंग्लिश रैल्म, अंग्रेजी दुनिया के अंदर इनको रोमांटिक लिटरेचर का प्रोपाउंडर, प्रणेता माना जाता है। इनका कहना था कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन ह्यूमन बीइंग। काव्य की भाषा इतनी सरल होनी चाहिए जो हर मनुष्य के समझ में आ जाए। इसके अंदर मीटर ज़रूरी है, इसके अंदर नो डाउट काव्य का टच होना ज़रूरी है, तो जिससे मन लगा रहे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा लव ऑफ नेचर, लव ऑफ प्रकृति का प्यार, लव ऑफ सुपर नेचर, ये सारी चीज़ कविता को संपूर्ण कविता बनाएंगी। और इन्होंने जो परिभाषा दी कि पोइट्री ए स्पॉन्टेनियस पावरफुल ऑफ ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, भूतकाल की बातों को, इमोशंस को, घटनाओं को इकट्ठा करके, रिकलेक्ट करके माइंड में, और फिर पावरफुल इमोशंस, जब बहुत इमोशंस मजबूत हो जाते हैं, तो जब वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, तब वो जा कर के कवि के हृदय पटल पर, मानसिक पटल पर इकट्ठे हो करके फिर वो नई इमेज के रूप में जो बाहर निकलते हैं। लेकिन उन शब्दों का चयन जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि कॉमन ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज हो और हर किसान तक को समझ में आनी चाहिए। किसान भाइयों, कितना तुम्हारे लिए इन्होंने उस युग में सोचा था कि यदि प्रकृति का आज कौन संवर्धन कर रहा है, किसान लोग कर रहे हैं, है ना, तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए कि और ज़्यादा हम भी प्रकृति की उपासना करें, प्रकृति को प्रिजर्व करें, प्रकृति का कंजर्वेशन करें, प्रिजर्वेशन करें, इसका यूटिलाइज करें, उपयोग करें, एक्सप्लॉइट ना करें, शोषण ना करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी बात आज इस विषय में समझ में आ गई होंगी, और इतने सुंदर पेट्रार्कन स्ट्रक्चर के अंदर इसको लिख दिया कि 8 लाइंस वही ऑक्टेव के रूप में, सेस्टेट के रूप में, 6 लाइन ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी राइमिंग स्कीम के साथ में, इसका बहुत ही तुकबंदी म्यूज़िक के साथ में इसको गाया जाता है। हाईली म्यूजिकल पोइम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेज़, हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।